हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स ऑफ जनवरी मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud, which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded and logged in through your Gmail ID, you will be transferred to this page. And you can see here various all courses and various other sections provided to us. The courses that are provided by our team are very helpful and they will be very useful in your preparation. In the courses that we provide, we give you daily current affairs, weekly current affairs and monthly current affairs. In daily current affairs, we will be providing you with multiple quiz of 20 questions daily. Then we'll be giving you the daily current affairs content also. Similarly, for weekly, we will providing you 50 questions of quiz on weekly basis, as well as all the important current affairs of that week will be given to you in an ebook. Similarly, for monthly basis, apart from this, we'll be providing you with banking awareness and all the banking relating exams. So don't worry, your preparation is in our hands. We'll be providing you with the best content. Apart from this, then you should know we covered topic wise. Important daily topic wise or the monthly topic wise are covered in our course. We'll give you 20 types of such PDFs that will cover apps and web portals, important days, books and authors, national affairs, international affairs, sports, awards, applications and web portals, and defense sector. All the topics that you see of general studies are basically covered here. As you saw, we provide current affairs in English, Hindi, banking awareness, exam PDF, special current affairs, topic wise current affairs are provided to you, state current affairs, then topic wise quizzes are provided to you. There is another section in special current affairs, that is learn from picture, and we have named this infographics. Infographics are your interactive PDFs that you can interact with. They are highly informative. I highly suggest you to go and check these out because they will be helping you to learn things in an interactive way. So do check them out. They will be very valuable to you. These are very important, so you should be able to revise them from using our course. All you have to do is to purchase our course. You can use code Vikas10, that will be giving you an additional 10% discount on the purchase you make. So it is a bumper offer. All you have to do is go and download our app and check our courses. So friends, we'll start with the session. तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। पहले कुछ इंडेक्स रिपोर्ट्स देखेंगे, फिर आपको इंडेक्स भी जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं वो भी कवर करेंगे। पहला हम बात करेंगे इंडिया के पासपोर्ट की। इंडिया के पासपोर्ट का आपको पता है एक रैंक आती है जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा रिलीज़ की जाती है, जिसके पूछने के बहुत चांस होते हैं। तो अभी रिसेंटली Q1 2022 के लिए जो इंडिया के पासपोर्ट की रैंक है, या फिर हम कह सकते हैं हेनले पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जो रैंक निकाली गई वो है 84। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा ये? क्योंकि जो Q4 था 2021 का, उसमें जो इंडिया की रैंक थी वो थी 90, और इंडिया की रैंक अब पहले क्वार्टर 2022 में हो गई है 84। इसका मतलब 6 रैंक इंडिया ऊपर आ गया। तो इंडिया के जो पासपोर्ट की स्ट्रेंथ है ना, वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ये ज़्यादा पावरफुल हमारा पासपोर्ट हो गया है। इंडिया का वीज़ा स्कोर है 60। इसका मतलब इंडियंस 60 कंट्री में प्रायर वीज़ा जा सकते हैं, मतलब उनको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। पहले से वीज़ा की ज़रूरत अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी इंडेक्स में जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में है, इंडिया रिलीज़ किसके द्वारा? हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक 84 रहेगी। टॉप किसने किया? जापान एंड सिंगापुर ने टॉप किया, और ये 190 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ के लोग। और याद रखना, जो जापान है ना, पिछले 4 साल से लगातार टॉप कर रहा है। 4 साल से लगातार टॉप कर रहा है इस इंडेक्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले पे जापान सिंगापुर ने टॉप किया, सेकंड आ जाता है जर्मनी साउथ कोरिया, थर्ड फिनलैंड इटली लग्जमबर्ग स्पेन, बॉटम 3 देखें तो अफगानिस्तान इराक एंड सीरिया। फिर हम बात करेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, कि किस कंट्री में कितना ज़्यादा करप्शन है उसको नापने के लिए। ये रिलीज़ किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो इंडिया में करप्शन बढ़ गया है, मतलब पहले इंडिया की 2019 में जो रैंक थी वो थी 80, अब इंडिया की रैंक हो गई है 86। मतलब इंडिया में जो करप्शन का लेवल है वो ज़्यादा बढ़ गया है एज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इन्होंने 2020 का करप्शन परसेप्शन इंडिया रिलीज़ किया, जिसमें इंडिया की रैंक रही 86 विद अ स्कोर ऑफ 40, जो कि पहले 2019 में थी 80वीं रैंक। इस लिस्ट में टॉप किया न्यूजीलैंड ने, फिर आते हैं डेनमार्क एंड
याद रखना। फिर इसके बाद सोमालिया, साउथ सुडान, इनकी लोएस्ट पोजीशन रही 179th। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली पोजीशन पे न्यूजीलैंड, फिर डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर स्विट्जरलैंड और फिर सिंगापुर। और इंडिया की रैंक रहेगी 86, जो कि इंडिया शेयर करता है टर्की, टोबैगो, ट्रिनिडेड टोबैगो, तिमोर लेस्टे, बुर्किना फासो, मोरक्को, इन सब के साथ। नेक्स्ट एक रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए, ये काफ़ी अच्छा डाटा भी रिसेंटली आया। ये डाटा यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया गया था। इस रिपोर्ट का नाम रहेगा G20 पीपल्स क्लाइमेट वॉर 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि इंडिया की जो 67% पॉपुलेशन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है ना, ये समझती है कि जो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ज़्यादा या एक ग्लोबल इमरजेंसी, इसको ऐसा समझा जाता है कि मतलब इस पे एकदम अभी हमें एक्शन लेना चाहिए। इस और आगे भी जो फ्यूचर में प्लान बन रहे हैं, हमें इसको क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए उन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट या फिर लाना चाहिए, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम में ना डालें। तो अराउंड 67% पॉपुलेशन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज कंसीडर क्लाइमेट चेंज एज अ ग्लोबल इमरजेंसी। ये डाटा G20 पीपल्स क्लाइमेट वोट 2021 की रिपोर्ट में लाया गया, जो कि यूएनडीपी के द्वारा रिलीज की गई थी। इंपॉर्टेंट याद रहेगा, ये सर्वे जॉइंटली कंडक्टेड बाय यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया गया। इसमें 35,000 कुछ अडल्ट और 31,000 कुछ अंडर 18 बच्चों से ये बात करी गई और ये सर्वे लिया गया और उनसे ये डिस्कवर किया गया कि क्लाइमेट चेंज को वो एक ग्लोबल रिस्क कंसीडर करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, कंट्री जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस, इसमें क्या है कि आप फॉसिल फ्यूल की बर्निंग पे ना सपोर्ट मिलता है कि अगर आप बर्न नहीं करोगे, ऐसा कोई लॉ लाया जाता है, तो जो हमारे एडल्ट होते हैं उस कंट्री के 18+ यूथ हो गए, एडल्ट्स हो गए, उसको सपोर्ट करते हैं। बट इंडिया में क्या है कि जैसे जैसे आप बड़ी पॉपुलेशन होती जाती है, जैसे छोटे बच्चे 18 साल तक, वो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। फिर 18 से 30 के बीच में आ जाएंगे तो वो थोड़ा कम सपोर्ट दिखाएंगे। 30 से लेके फिर 50 के बीच में उनका सपोर्ट और कम होता जाएगा, और जो फिर और बड़े बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, उनका सपोर्ट इस फील्ड में और कम होता जाता है। इसलिए एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती लॉज की। फिर यूएनडीपी इसी ध्यान में रखते हुए जो इंडिया के यंगस्टर हैं, इंडिया के यूथ को प्रमोट करने के लिए, इंडिया को के यूथ में क्लाइमेट के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इंडिया का पहला यूथ क्लाइमेट चैंपियन सेलेक्ट किया। और वो कौन रहेंगे? वो है प्रजक्ता कोहली। प्रजक्ता कोहली कौन है? ये मोस्टली सेन के नाम से यूट्यूब चैनल पे रहेंगी, काफ़ी फेमस यूट्यूबर है। इनको इंडिया का पहला यूथ क्लाइमेट चेंज चैंपियन घोषित करा गया बाय यूएनडीपी। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर के द्वारा एक कोड ऑफ प्रैक्टिस रिलीज किया गया फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कोड ऑफ प्रैक्टिस किसके द्वारा? टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर के द्वारा ये रिलीज किया गया। इट इज रिलीज फॉर द यूज ऑफ IoT डिवाइस बाय मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटीग्रेटर्स एंड एप्लीकेशन डेवलपर्स। ठीक है, मतलब जैसे IoT डिवाइस क्या होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आप अपने फ़ोन से, अपने रिमोट से, टीवी के रिमोट से आप टीवी को कंट्रोल करते हैं, तो ये IoT के थ्रू करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू करते हैं, उसमें सेंसर होता है। फिर जैसे आप अपनी फ़ोन से, अपने ही फ़ोन से आप टीवी को ऑपरेट कर रहे हैं, अपने ही फ़ोन से आप कोई कार को ऑपरेट कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल कार को। आपने देखा होगा ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स किस पे वर्क करते हैं? ये एक IoT ही तो है। तो इन चीज़ों पे लाने के लिए कंज्यूमर इनको यूज़ कर सके अच्छे से, उस पर जो प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर होंगे तो कैसे मैन्युफैक्चर होंगे, उनके लिए रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी। ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में आएगी, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो बेसिक जो बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे डाली गई, किनके द्वारा? टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के द्वारा। फिर क्या जरूरत थी इसकी? द ग्रोथ ऑफ IoT। अब आप देख रहे हैं कि हर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो जाता है, तो द ग्रोथ ऑफ दिस IoT डिवाइस इज एट फुल पेस, देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द यूजर एंड द नेटवर्क दैट द कनेक्ट these IoT device from hacking by adhering to safety and security standards। कोई इनको हैक ना कर ले। अब कोई आपके फ़ोन को हैक कर ले और आपके फ़ोन से टीवी का चैनल बदलता रहे, आपको न्यूज़ देखनी है पर वो आपके टीवी पे स्पोर्ट्स लगा देगा, तो ये सारी चीज़ें एक हैकिंग के अंडर आ जाती हैं, जो कि गलत होती हैं। तो इन हैकिंग से, इन सारी सेफ्टी से प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सारी सेफ्टीज़ को प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूमर को ये रिपोर्ट लाना ज़रूरी था और कुछ गाइडलाइंस भी बनाना ज़रूरी था कि इन अंडर दीज गाइडलाइंस जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी फॉर द सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे की, जिसका सेकेंड राउंड अभी रिलीज किया गया हमारे लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने रिलीज किया
अभी एक डाटा जो कि रिपोर्ट ऑफ सेकेंड क्वार्टर का था, क्वार्टर 2 ऑफ फिस्कल ईयर 2022 जुलाई से सितंबर का, ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे का है ये। इसके अनुसार बताया गया द एस्टिमेटेड टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द 9 नॉन फार्म सेक्टर्स इज 3.10 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, जो कि 2 लाख हायर है देन द एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट जो कि है 3.08 करोड़ फ्रॉम द फर्स्ट राउंड ऑफ QES जो कि अप्रैल से जून के बीच में था, रिलीज्ड ऑन सितंबर 27। ओवरऑल जो परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स है वो 32.1% पे स्टूड रही, जो कि हायर थी क्वार्टर 1 में जो था 29.3%। ठीक है, याद रखना ये भी डाटा। फिर हम बात करेंगे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की। अभी अभी डाटा रिलीज किया गया रिसेंटली, इसमें बताया गया कि जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है ना और जो ट्री कवर है वो बढ़ गया है। टोटल कवर देखा जाए कि इंडिया ने टोटल जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को मिला दें तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखा गया हमें फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में पिछले 2 साल का अगर डाटा निकालें तो। ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भूपेंद्र यादव के द्वारा रिलीज की गई। ये एक बाइनियल रिपोर्ट होती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इसमें बताया गया कि जो टोटल फॉरेस्ट एज वेल एज ट्री कवर रहेगा 2261 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। इसमें से देखा जाए तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर तो फॉरेस्ट कवर बढ़ा और 721 किलोमीटर का आपका ट्री कवर बढ़ा इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, ये 2019 के कंपैरिजन में है कि 2019 में जो डाटा था उससे इतना ज़्यादा बढ़ा है। फिर अगर पूछा जाए कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर दिखा हमें बढ़ता हुआ, वो है 647 स्क्वायर किलोमीटर का और वो स्टेट रहेगी आंध्र प्रदेश में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है इस रिपोर्ट का कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ता हमें दिखा, वो है 647 स्क्वायर किलोमीटर का और वो रहेगा आंध्र प्रदेश में। देन हम बात करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। पहले कुछ आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस देखते हैं हम जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस इंडेक्स में? इंडिया की 7th रैंक रहेगी इस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में एंड टॉप करने वाला बना मोजाम्बिक। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिलेंथ्रोपी लिस्ट की। फिलेंथ्रोपी लिस्ट की इंडिया में सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट कौन है? वो है अजीम प्रेम जी, याद रखना अजीम प्रेम जी। और फिर आ जाते हैं सेकंड नंबर पे शिव नादर। ये फिलेंथ्रोपी लिस्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? ह्यूरन इंडिया के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है एज वेल एज एडल गिव फाउंडेशन के द्वारा। ये दोनों फिलेंथ्रोपी लिस्ट को रिलीज करते हैं और अजीम प्रेम जी सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो दूसरों की हेल्प करते हैं। फिर हम बात करेंगे क्वाकरेली साइमंड्स के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की जाती है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके द्वारा, या फिर ऐसे कह सकते हैं क्वाकरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वाकरेली साइमंड के द्वारा रिलीज की गई और 2022 में एडमिशन की बात कर रहे हैं। इसमें जो यूनिवर्सिटी टॉप पे रही, फर्स्ट आई, वो कौन सी रहेगी आपकी? वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये टॉप पे रही। इंडिया की बात करें तो इंडिया का आईआईटी मुंबई की पोजीशन रही 42nd एंड आईआईटी दिल्ली की बात करूं तो 45th पोजीशन पे रही आपकी इस क्वाकरेली साइमंड रैंकिंग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 की बात करें, इसका अभी पहला एडिशन रिलीज किया गया। किसके द्वारा? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा इसका रिलीज किया गया। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा पहला एडिशन ऑफ ड्रग पॉलिसी इंडेक्स रिलीज किया गया। इसमें क्या रैंक रहेगी इंडिया की? इंडिया की रैंक रहेगी 18th। मार्क करना, इंडिया की रैंक रहेगी 18th। और इसमें जिसने टॉप किया, जिसमें बहुत कम मतलब ड्रग पॉलिसी जो वहाँ पे बेटर है, अच्छी हैं, वो कहाँ है? नॉर्वे में। नॉर्वे ने टॉप किया इस ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब ग्लोबल CCP ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 की बात करेंगे। इसमें याद रखना जो पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन थी ना, इस बार डिक्लेयर ही नहीं की गई। क्यों? क्योंकि इन 3 पोजीशन को लाने के लिए जो
क्राइटेरिया होते हैं जो पूरे करने पड़ते हैं वो किसी भी कंट्री के द्वारा पूरे नहीं करे गए, इसलिए इसकी रैंकिंग 4th से स्टार्ट की गई। 4th सिक्योर करी डेनमार्क ने, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2022 के 4th पोजीशन पे रहा डेनमार्क। इंडिया की पोजीशन पूछ ले तो इंडिया की पोजीशन रहेगी 10th, ठीक है। इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी? 10th। फिर हम बात करेंगे आईक्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें इंडिया की कौन सी सिटी का क्या रैंक रही ये पूछी गई। पहली पोजीशन पे आ जाती है दिल्ली, 4th पे रहेगा कोलकाता और 6th पे रहेगा आपका मुंबई। आईक्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021 का। और ये आईक्यू एयर की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड बेस्ड एक क्लाइमेट ग्रुप है, ठीक। नेक्स्ट पे आइए। फिर हम बात करेंगे ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग या रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा। इंडिया की क्या रैंक रहेगी ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में? 82nd रैंक रहेगी, ठीक है। टॉप पे किसने किया? फर्स्ट पोजीशन किसकी आई? किसकी आती है हमेशा? डेनमार्क की। ऑलराइट, तो ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स की बात करें, लॉन्च किया गया ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा। इंडिया की रैंक रहेगी 82nd और ये टॉप किसने किया? डेनमार्क के द्वारा इसको टॉप करा गया, ठीक है। याद रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।